Yes. Let me share the screen. Okay, I hope you can see the screen. Read the question carefully. Two cars are traveling towards each other on a straight road at the velocities 15 meter per second and 16 meter per second respectively. When they are 150 meter apart, both drivers apply the brakes and the cars deaccelerate at the acceleration of 3 meter per second square and 4 meter per second square until they stop. Then we want to find out the separation between the cars when they comes to rest. See here, the situation is like this. Suppose these are the two cars and the distance between them is given to be 150 meter initially. Okay, and they are already moving with the speeds 15 meter per second and 16 meter per second towards each other. Okay, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, and when they apply the brakes, तो अभी यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया तो इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस वाले का एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना दिया हुआ है. ठीक है, अभी हमको ये चाहिए कि जब ये कार स्टॉप होंगे, समझो यहाँ से लेके ये कार जो है वो यहाँ तक आके रुकता है और ये जो कार है वो यहाँ से यहाँ तक आके रुकता है, तो जब ये रुकेंगे तो तब उनके बीच में का डिस्टेंस कितना होगा. You have to find out this x here. Okay, yes. अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, how will you approach this question? Yes, how will you approach this question? कौन बताएगा? What will be your strategy to find out the answer? ये x ढूंढ के निकालने के लिए तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, क्या करना होगा हमको? स्टेप बाय स्टेप बताओ फटाफट. Anybody? Okay, ठीक है, देखो, let me explain. What happens is ये जो कार इस तरफ जा रहा है तो वो 15 मीटर पर सेकेंड ये उसका इनिशियल स्पीड हो गया, बराबर, इनिशियल स्पीड, और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतने डीएक्सेलरेशन की वजह से उसका स्पीड कम होता जाएगा और यहाँ पे जाने टाइम तक S1 इतना डिस्टेंस सपोज कवर करेगा. ठीक है, S1 डिस्टेंस वो कवर करेगा. ठीक है, व्हाट इज S1 हियर? इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस फर्स्ट कार बिफोर इट स्टॉप्स, राइट. एंड अभी यहाँ पे जो 16 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जो जाने वाला कार है, दूसरा वाला कार, तो उसका भी डीएक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. इस डीएक्सेलरेशन की वजह से उसका भी स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहाँ पे जाके वो रुकेगा. तो the distance traveled by that car is actually we can consider as S2 here. Okay, तो S1 कंसीडर किया, S2 भी कंसीडर किया और ये X तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, but we are already given that this 150 meter distance is there between these two cars. Initially स्टार्टिंग में वो 150 मीटर डिस्टेंस दूर खड़े हैं. तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फर्स्ट कार प्लस x, that is the distance between these two cars after they stop, plus S2, that is the distance traveled by the second car, will actually give us 150. तो अभी ये 150 तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. अगर हमको S1 और S2 मिल जाता है तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 150 में से S1 को और S2 को हटा देंगे, तो इससे हमको x मिल जाएगा. ठीक है, तो x के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा 150, that is the total distance between two cars, minus the distance traveled by first car, that is S1, minus the distance traveled by the second car, that is S2. Do you agree with this? Yes sir. Okay, चलो ठीक है. तो अभी इसमें सवाल फिर पैदा होता है कि how will you find out S1 here? What is S1? It is the distance traveled by the first car with the deacceleration of 3 meter per second square and initial speed of 15 meter per second square.
So we have to investigate what is the relationship between the distance covered, the acceleration, and initial speed and final speed, obviously, because the final speed is going to be 0 in this case here. ये 0 रहने वाला है और ये initial speed जो उसका है वो 15 मीटर पर सेकेंड रहने वाला है. So what is the relationship between u v acceleration, that is a, and s1? कौन बताएगा? सर काइनेमेटिक इक्वेशन 2 लगेगी सर. काइनेमेटिक इक्वेशन 2 लगेगी. 2 नहीं, 2 के अंदर तो टाइम है. टाइम के बारे में तो दिया ही नहीं है हमको कुछ भी, ठीक है? नहीं, टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. टाइम पता ही नहीं हमको. सर थर्ड वाली लगेगी. हाँ, थर्ड वाला इक्वेशन लगेगा. बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, थर्ड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा हमको. यूजिंग द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. देखो, so what is third kinematic equation? V square is equal to u square plus 2as. Okay, तो अब यहाँ पे v कितना है? 0. कार is going to stop, right? तो इसलिए यहाँ पे वो 0 का स्क्वायर हो गया. u कितना है? देखो 15. तो 15 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a कितना है मुझे बताओ. What is the acceleration? 3 या -3? -3 होगा सर. -3 क्योंकि डीएक्सेलरेशन हो रहा है ना. It is mentioned in the question that brakes are applied, right? So ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो उसका स्पीड कम होता जाता है और वो फाइनली रुकता है. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव because it's going to be deacceleration. So you can take it as -3 here and into s. s मतलब यहाँ पे s1, वही तो हमको ढूंढ के निकालना है. So let us keep it as it is, s1. ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा. 0 is equal to 225 minus here it is 6s1, and if we just take this 6s1 in this side, then it will become positive and it will become 6s1 is equal to 225, which gives s1 precisely as 225 upon 6. Now we know that we can divide this by 3. So 3 2s are and 3 7s are 21 and 1 carry 15 हो गया. 3 5s are 15. So 75 by 2 मतलब कितना हो गया? वो 37.5 मीटर. ये हो गया हमारा वैल्यू S1 का. चेक करो एक बार. ठीक है, S1 का वैल्यू तो हमको मिल गया. ठीक है, in the same way we can find out the value of S2 here. Okay, S2 निकालने के लिए क्या करना होगा? देखो, again using the third kinematic equation for the vehicle 2. Okay, तो ये सेकंड कार के लिए अगर हम यूज करेंगे तो हमको मिलेगा v square is equal to u square plus 2as once again, and then we can just be able to say that is v is also going to be 0 here because that is also going to stop. So 0 का स्क्वायर is equal to u कितना है? देखो 16. तो 16 का स्क्वायर प्लस 2 times of a -4. Very good. -4 into s2, that is to be found out here. So we can just simplify this and say that this will be 0 is equal to 256, that is 16 square minus 8s2. So that 8s2 can become equal to 256 and then s2 can be written as 256 upon 8. So 8 12 नहीं, हाँ 12 नहीं 42 सर 42 आ जाएगा. 42 नहीं 32 24 and 1 carry 16 हो गया and 2 32. Yes, so s2 will be equal to 32. Okay, s2 भी मिल गया. वही तो हमको चाहिए था. s1 s2 क्यों निकाला हमने? क्योंकि हमको x निकालना था. तो x निकालने के लिए क्या करना है? 150 में से s1 और s2 दोनों माइनस करने हैं. उसको तो हमको मिलेगा x is equal to 150 minus, we can even take this minus sign common and get this as s1 plus s2 inside the bracket, so that we can be able to get this x is equal to 150 minus, what is this? s1 is 37.5 and s2 is 32. So if we just add them up, we get this x equal to 150 minus, what is this? 69.5. 69.5. Correct. Yes. So what it will be?
Yes, 80.5. Check. 80.5 sir. 80.5 meter. That means even when they will stop, then at that time also they will have this 80.5 meter distance between them. ठीक है, तो उनके बीच में इतना डिस्टेंस फिर भी रहेगा, क्योंकि इसने S1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इधर से और उसने उधर से S2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये दोनों का एडिशन हमने 150 में से माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उनके बीच में रहेगा जब वो रुकेंगे. ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay. Let us try to solve the next question. सर मुझे क्वेश्चन पूछना है. ये हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ दिखेंगे? मुझे नहीं दिख रही रिकॉर्डेड क्लासेस. उन्नति ना. हाँ. ओके, अच्छा बाकी सबको तो मिल रहे हैं ना रिकॉर्डिंग्स? Yes sir. ओके, ठीक है. So let us see the next question now, and also we'll check the answer of this question. Yes, 80.5. Okay, so this fourth option is going to be the correct one here. चलो ठीक है. So next one. Just wait. Yeah, let's read this question. See, a car starts with a constant acceleration of 2 meter per second square. At the same instant, a truck traveling with a constant speed of 10 meter per second just overtakes and passes the car. How far beyond the starting point will the car overtake the truck? Okay, isn't it the same question or similar question which we have solved last time? Yes, sir. So can you try it on your own? देखो सिचुएशन में बताता हूँ. There is a car and there is a truck. Okay, this is truck and this is car. And car starts with 2 meter per second square acceleration. So इसका u जो है वो कार का 0 है और acceleration जो है वो 2 meter per second square है. ठीक है, तो मतलब कार का जो मोशन है वो accelerated motion है. देखो ठीक से. And its initial velocity is 0 because it is given that it starts. Okay, starts मतलब initially it is at rest. Okay, and at the same time truck traveling with constant speed of 10 meter per second overtakes and passes the car. तो मतलब ये जो है ये ट्रक यहाँ पे constant speed से जा रहा है और उसका स्पीड कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. ठीक है, तो और उसका एक्सेलरेशन 0 होगा. क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. ठीक है नहीं, तो जो भी चीज कांस्टेंट स्पीड से जाता है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 कहलाता है. चलो ठीक है, एक्सेलरेशन 0 and initial speed is going to be constant and that is going to be the same as final speed only. ठीक है, तो अभी ये जस्ट जैसे ही ट्रक आगे चला जाएगा तो वो तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो वो आगे बढ़ेगा नो डाउट, लेकिन कार जो है वो पीछे रह जाएगा क्योंकि जो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन वो एक्सेलरेटेड मोशन है. तो एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से क्या होगा, इस कार का स्पीड बढ़ते 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 जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट को ये ट्रक को वो ओवरटेक कर लेगा. तो कितने टाइम के बाद, ठीक है नहीं, कितने डिस्टेंस के बाद वो ओवरटेक करेगा वो हमको ढूंढना है. ओके, मतलब ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमने कल क्या निकाला था, टाइम ढूंढ के निकाला था, है कि नहीं. हाउ मच टाइम आफ्टर दे मीट ये हमने ढूंढ के निकाला था. अभी यहाँ पे हमको नहीं क्या निकालना क्या है, हाउ फार अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दे ओवरटेक. तो मतलब इनको ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो वो हमको ढूंढ के निकालना है. लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट हियर. At this time this car is also there and at the same time the truck is also there.
but at that time car is overtaking the truck at this point here. Okay, so how far this point is going to be from this initial point, that is we have to find out. मतलब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, s ढूंढ के निकालना है, s. ओके, और उस समय जो टाइम इंस्टेंट होगा वो तो t ही होगा, वो भी दोनों के लिए सेम होगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि the distance traveled by the car and truck is actually going to be the same. So we can just consider the s1 as a distance traveled by the truck and s2, और चलो s2 and s1 ऐसा हम लिख सकते हैं उसको. This s1 is the distance traveled by this car here. Okay, तो अभी s1 और s2 इन दोनों को हमको इक्वेट करना होगा जिससे हमको t मिलेगा, और वो मिला हुआ जो टाइम t का वैल्यू है वो हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल के s1 का या s2 का वैल्यू निकाल सकते हैं. That is going to be the distance at which they meet. तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको इस कार के ऊपर डिस्टेंस निकालने के लिए सेकंड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना होगा. जानते हो सभी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है? You can say for car. Okay, so for car u is already 0, a is 2, so we can just say that is s1. You know that is s is equal to ut plus half a. t square. ओके, तो s के बदले क्या आने वाला है, यहाँ पे s1 आने वाला है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार है. u के बदले क्या आने वाला है, ये देखो 0 है उसका, इसलिए 0 इनटू टाइम हमको पता नहीं. ठीक है, कीप इट एज इट इज, प्लस हाफ इनटू a के बदले क्या आने वाला है, 2 आने वाला है. देखो ठीक से, तो ये बन गया 2 और t स्क्वायर फिर से हमको बताना. ठीक है, तो s1 इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, ये 0 प्लस 0 इनटू t तो 0 हो गया, तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है सिंपली, और यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया, तो इससे हमको मिलेगा s1 इक्वल टू t स्क्वायर. तो ये हमने किया कार के लिए, कार ने ट्रैवल किया डिस्टेंस हमने निकाल लिया. ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक. सो ट्रक के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे क्या? बोलो फटाफट. How will you find out the distance traveled by truck in time t with constant speed 10 meter per second? Yes, anybody? See here, we can also use the second kinematic equation for truck. Okay, see s2 is going to be ut plus half a t square once again, but चलो ठीक है s, हाँ, तो s2 will be actually equal to ut. u कितना है उसका 10, वो तो कंफर्म है. ठीक है, so this is 10 into t, t हमको पता नहीं, प्लस अब यहाँ पे मुझे बताओ a कितना है, a 0 है. is it confirmed? a is 0 just because the truck is moving with constant speed ना. जो भी चीज constant speed के साथ मूव होता है तो उसका हमेशा जो इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा 0 रहता है. इसलिए यहाँ पे ये जो है हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर आएगा, जिसमें इस एक 0 की वजह से ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, सिंपली s2 इज इक्वल टू 10t. दैट्स ऑल. और यही हमको मिलना था अगर हमने सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज किया. तो यही मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये याद रखो अभी ठीक से. ठीक है, ऑल ऑफ यू विल रिमेंबर दिस. ठीक है, we have to use the formula, that is distance is equal to speed into time in case when the acceleration is 0, or in case when the body is moving with constant uniform velocity. Okay, तो ये हमको समझना है. तो इसलिए यहाँ पे s2 का वैल्यू 10t आ गया. चलो ठीक है, s1 is t square, s2 is 10t, but since they are meeting at a point particularly, so we have to say that when they will meet, s1 will become equal to s2. So s1 is going to be t square, which must be equal to 10 times of t, so that this t gets cancelled and we are left with t is equal to 10 here. To get this t equal to 10, we can just put this value of t in equation number 1 or equation number 2, so as to get s1 or s2. They will be same. ये guarantee है, दोनों same ही होंगे. So if you put this value of t in equation number 1, then we can be able to get s1 that is equal to 100. समझा लिख से, 10 का स्क्वायर मतलब 100, बराबर है. और अगर s2 का भी वैल्यू निकालने के लिए ट्राई करते हो तभी भी वही होगा. देखो t के बदले यहाँ पे अगर 10 डालते हो तो भी 10 into 10 क्या बनेगा, 100 ही बनेगा. और क्या बनेगा, इसलिए वैसे भी चल के s1 या कहो या s2 कहो 100 ही आने वाला है.
तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे जब कार ट्रक को ओवरकम करेगा 100 मीटर. That is going to be the answer. Okay, so let's take the screenshot of this. Yes, let us check. Third option will be the correct one. Yes, 100 meter. Okay. So let us see the next question. Just read the question. A car is moving along the straight road with uniform acceleration. It passes through the 2 points P and Q separated by this certain distance with the velocities 30 km/h and 40 km/h respectively. Then the velocity of the car exactly midway between the points P and Q is. Okay. समझा next question क्या है? They are discussing about the 3 points. Okay, ये suppose कार का जर्नी जिसमें ये कार जो एक पॉइंट है यहाँ पे P, ओके, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे Q. तो ये कार जब P पे आता है तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना है? 30 km/h है, ठीक है, 30 km/h. And when the car comes to this point Q here, its velocity is to be 40 km/h. Okay, तो ये तो दिया हुआ है. But what we want here, we want to find out the velocity of the car exactly at midpoint of P and Q. Let us take this midpoint as R. Okay, this R is going to be midpoint of P and Q. तो इस R पे आने के बाद उसका velocity कितना होगा? That is we want to find it out. तो ये हमको velocity निकालना है. How will you approach? बोलो Robert, कौन बताएगा? कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन या क्या टेक्निक हम यूज कर सकते हैं ताकि हमको आर्क के ऊपर का वेलोसिटी मिल जाए? Let us call this velocity. This one can be called as u. Okay, this one can be called as v. And जो फाइंड करना है हमको उसको हम बोल देंगे w. ठीक है, that is to be found out. Yes. Sir, S is equal to U plus V divided by 2 into T से हो जाएगा क्या? T के बारे में कुछ भी नहीं बोला उन्होंने. टाइम के बारे में यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है, nothing is told here. सर सेकंड में भी T आता ही है. थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन. थर्ड तो वन. हमको यहाँ पे ऐसा इक्वेशन चूज करना होगा जिसमें T नहीं आता है. याद है मैंने बताया था कि कौन से इक्वेशन के अंदर T नहीं आता है, तो वो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है. ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना है. ठीक है, बट इफ यू जस्ट यूज इट इन दिस इंटरवल, ओके, इस इंटरवल के अंदर अगर हम यूज करेंगे उसको तो क्या होगा? देखो, लेट अस टेक दिस डिस्टेंस टू बी s. कुछ तो भी होगा नहीं है डिस्टेंस, जो भी होगा उसको हम s मान लेते हैं. तो ऑब्वियसली सिंस दिस r is going to be midpoint of p and q, this distance is also going to be s, right? सॉरी, हाँ, s. तो इन दोनों के बीच में का भी डिस्टेंस s ही रहने वाला है और ये डिस्टेंस भी s रहने वाला है. तो अगर हम ये p to q अगर अप्लाई करते हैं, p to q apply the using third kinematic equation in p and q. Okay, p और q, sorry, p and r, sorry sir, p and r इस इंटरवल के अंदर थर्ड kinematic equation यूज करो तो क्या इक्वेशन मिलेगा तुमको बताओ? तो देखो w हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी, बराबर. Yes, w हो गया फाइनल वेलोसिटी, u is the initial velocity, s is the distance traveled, so we can just say that this w square is equal to this u square plus 2as. This is s. Okay, just give this as equation number 1. Okay, wait,
यहाँ पे u हमको पता है ना, तो डाल दो उसको यहाँ पे, तो हमको मिलेगा w स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कुछ भी नहीं पता है हमको, ना a पता है ना s पता है, ठीक है। So give this as equation number 1, and now just use the same equation, third canonical equation, in the interval r2q, okay, r2q, check। अभी r2q में क्या होगा, देखो जब ये बॉडी r पे आएगा तो उस समय का उसका वेलोसिटी कितना है, w, वो बनेगा उसका इनिशियल वेलोसिटी, राइट, और ये जो है 40 वो बनेगा उसका फाइनल वेलोसिटी। और इसलिए इस इंटरवल में अगर हमने वो इक्वेशन यूज किया तो हमको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसलिए w का स्क्वायर, समझा, u के बदले क्या आ गया, w आ गया, तो w का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन a into the same distance, that is s, and if you just replace the value of v here, that is 40, then we can be able to get this as 40 square is equal to w square plus 2as, and this can be given as equation number 2 here, okay। इसमें से हमको w निकालना है, लेकिन इसमें हमको 2as का वैल्यू पता ही नहीं है, तो एक काम कर सकते हो, देखो इसमें से 2as का वैल्यू निकाल के इसके अंदर डाल दो, या इसमें से 2as का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, या सिंपली इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस उतना तो कर सकते हो। देखो जो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2, ओके, 1 में से 2 सबट्रैक्ट कर दो, तो देखो क्या होगा, ये 1 हमको पहले लिखना होगा, w स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा 900 प्लस 2as, ओके, और सेकंड इक्वेशन जो है ये बनेगा 1600 which will be equal to w square plus 2as, and then if we just subtract these two equations, then we can be able to get this minus sign and minus sign here, so 2as वाला term cancel हो जाएगा, correct है, 2as will get cancelled, and what we are left with is simply this w square minus 1600 is equal to, here it is 900 minus w square. So if we just take this w square in this side, then we can be able to get this w square plus w square is going to be equal to 1600 plus 900, which gives 2w square as equal to 2500, correct है, square actually becomes 2500 upon 2, मतलब w कितना बनेगा फिर, तो w square will be actually 1250, and then w will be actually, what is the square root of 1250, we can write it as root of 625. 1250, नहीं चेक करो ठीक से, वो आधा नहीं करना है हमको, स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखो 1250 मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 150 25 into 50 ऐसा लिख सकते हैं, और इवन इसको और भी आगे जाके 25 into 25 into 10 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 25 into 2 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं कि नहीं, चेक करो एक बार, 125 को हम लिख सकते हैं 25 into 5 और एक 0 एक्स्ट्रा, बाकी इस 50 को हमने लिख दिया 25 into 2, तो 25 दो बार आ गया ना, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो एक ही बार आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 25 और वो बाहर चला जाएगा, बाहर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, और अंदर में कौन सिर्फ 2 बचेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 25 root 2, and this will actually be the final value of velocity here, okay, just take the screenshot of this. Yes, any doubt? समझा नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने, ओके ओके ठीक, yes, first of all we have applied the third canonical equation in this first interval,
Then we have applied the second kinematic equation in the second interval, and we have just subtracted those two equations obtained and got the final answer. Okay. Okay. चलो ठीक है. So let us see the next question. So answer will be 25 root 2. Okay. Yes, just try to solve this question here. A train is running at a full speed when the brakes are applied. Okay. In the first minute, it travels 8 kilometer, and in the next minute, it travels 3 kilometers. Then the initial speed of the train is. Okay, so see here, this is suppose the journey of the train, and it is running at the full speed. We don't know how much it is. U is going to be the full speed. Okay, what it may be, and the brakes are applied. So अब यहाँ से उसका deacceleration चालू हो गया. We don't know how much it is, but it will be a something like that. So in the first minute, तो मतलब first minute मतलब कितना हो गया वो 60 seconds हो गया कि नहीं. तो 60 seconds के अंदर वो कितना distance travel करता है 8 किलोमीटर इतना distance travel करता है, मतलब 8000 मीटर हो गया वो. ठीक है. Yes, so first in the first minute it travels 8000 meter, and in the second minute, next minute, तो यहाँ से आगे और एक मिनट, मतलब यहाँ से 60 सेकेंड्स हो गया वो, करेक्ट. तो वहाँ पे कितना वो ट्रेवल कर रहा है 3 किलोमीटर, मतलब वो हो गया 3000 मीटर. यस, तो ये उसका डिस्टेंस हो गया. तो ये दिया हुआ है. ठीक है. तो अभी हमको निकालना क्या है, इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन. So how much will be the initial speed of the train, and how can we find it out? तो उसके लिए देखो कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, अभी मुझे बताओ. कौन बताएगा? Which kinematic equation has to be used here? See, this is the distance. Second one. Yes, very good. Second one. Because time दिया है, distance दिया है, और initial speed हमको चाहिए. Acceleration भले पता नहीं है, लेकिन ये दो conditions होने की वजह से हम निकाल सकते हैं उसको. ठीक है. देखो सबसे पहले हमको second kinematic equation यूज करना पड़ेगा. Using second kinematic equation. English interval. सर ऐसे मतलब इस मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब क्वेश्चंस हमेशा कंपैरिजन के बीच में होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बहुत वैरायटी है उसमें. क्योंकि सर अभी तक आपने जितने किए सारे कंपैरिजन के बीच में थे, सो मेरे को लगा कि सारे कंपैरिजन के बीच थे. इसीलिए कि ये कंपैरिजन करने से हमको क्या कहते हैं कि अभी इस इंटरवल के अंदर हमको सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना आना चाहिए, उस इंटरवल में सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना आना चाहिए. इस सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन के अंदर के जो सिंबल्स है U T A
टी स्क्वायर, ये सब का हमको मीनिंग यहाँ पे यूज करना आना चाहिए, मतलब क्योंकि इस इंटरवल के अंदर वो अलग रहेंगे, उस इंटरवल के लिए अलग रहेंगे, तो ये हमको दिमाग में बैठना चाहिए। उसके लिए ये इस टाइप के क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अब यहाँ पे इस फर्स्ट इंटरवल में इसको हम नाम देके रखेंगे, सपोज ए, दिस इज सपोज बी एंड दिस इज सी। तो पहले हमको कहाँ पे यूज करना है, ए बी में यूज करना है, ए बी में, ठीक है, इन ए बी। तो क्या होगा देखो, तो s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अब ये वेरिएबल्स है, मुझे बताओ अभी इस इंटरवल को सामने रख के s कितना होगा, बोलो फटाफट, s के बदले क्या रखने वाले हो तुम? फर्स्ट इंटरवल की तरफ देखो, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 8000 मीटर ना, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 8000, ये हो गया तुम्हारा s, समझा ठीक से। अब u तो हमको निकालना है, वो वैसे भी पता नहीं है, तो इसलिए u को रखो वैसे ही, u एंड इनटू t जो है वो t 60 सेकंड्स दे रखा है, तो यहाँ पे हमको t डालना है 60 सेकंड्स प्लस हाफ a, फिर से हमको पता नहीं है, एक्सेलरेशन इज नॉट नोन, और t स्क्वायर इज अगेन 60 का स्क्वायर जो कि 3600 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इसको सॉल्व करने से हमको ये मिलेगा 8000 इज इक्वल टू 60u प्लस half of a into 3600 as it is. ओके, या तो फिर वैसे एक्चुअली ये किलोमीटर में और ये मिनट में भी अगर रखते हो तभी भी चल जाएगा, क्योंकि हमको कंपैरिजन ही करना है आखिर, वैसा करें थोड़ा इजी पड़ेगा। देखो ये जो है, बट चलो ठीक है, रखो ऐसे ही। अभी अभी मुझे बताओ सेकंड इंटरवल में क्या रहने वाला है, ये तो ठीक है, ऐसा करते हैं, ये 8000 मीटर जो है उसको 8 किलोमीटर लिख देते हैं जैसा कि उन्होंने बोला है, और 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट, ओके 1 मिनट, इधर भी सेम वही हमको करना है 1 मिनट, और ये 3 किलोमीटर, ओके। सो अभी फर्स्ट इंटरवल के ऊपर अगर फोकस करते हो तो s कितना रहने वाला है, 8 किलोमीटर, भले वो किलोमीटर में है रखो वैसे ही, u हमको पता नहीं, फिर से t 1 है, और हाफ इंटू a फिर से पता नहीं, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है, तो इससे हमको मिल जाएगा 8 इज इक्वल टू u प्लस a by 2, करेक्ट है। गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ व्हाट वी टू डू इज, अभी हमको यहाँ पे ये सेकेंड इंटरवल अगर कंसीडर करेंगे ना, तो वहां पे उसमें अगर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, तो उसमें u कौन होगा, इधर का स्पीड होगा, लेकिन उधर का स्पीड हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम इस सेकेंड इंटरवल को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके सेकेंड इंटरवल के पहले वाला जो स्पीड है वो हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा इंटरवल चूज करेंगे जिसका इनिशियल स्पीड पता है, तो और वो इंटरवल है AC, ओके, AC पूरा इंटरवल। तो अगर इस AC के ऊपर अगर हम सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं, अभी देखो यूजिंग सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन इन AC, ओके फुल इंटरवल, तो उसमें फिर से हमारे पास है सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, करेक्ट है। सो s के बदले अभी क्या आने वाला है मुझे बताओ, AC के ऊपर फोकस करके मुझे बताओ व्हाट इज s इन दिस केस, ये 8 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, ये टोटल कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर हो जाएगा, यू एग्री विद दिस, ओके। सो s के बदले आने वाला है 11, u के बदले क्या आएगा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो वैसे भी हमको पता नहीं है, वही तो ढूंढ के निकालना है, और टाइम कितना आएगा मुझे बताओगे, क्योंकि टोटल टाइम यू हैव टू कंसीडर हियर, 2 minutes. 2 2 minutes. minutes, very good, right, 2 minutes, and plus here it is half of a which is again not known, and here t square will actually be again 2 square, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 11 is equal to 2u plus यहाँ पे half of a into 4 आएगा, ठीक है नहीं, तो इसमें से 2 कैंसिल होके 2a बचेगा, और हमको मिलेगा 11 is equal to 2u plus 2a, ओके।
This is your equation number 2 here. Now, since we want to find out u, we can just manipulate these two equations and try to solve them simultaneously. अभी दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं वो हमको ऑलरेडी पता है. हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड के अंदर इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व कैसे क्या करना होता है वो देखा है. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, लेट अस मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन बाय, नहीं उससे तो u कैंसिल हो जाएगा. We don't want that. We want u actually. So we want to make this coefficient of a similar. तो देखो पहले हम इन दोनों को एक के नीचे एक लिख देंगे. ये देखो u plus a by 2 is equal to 8. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. Okay, and in the same way here the second equation we can just write it here, that is 2u plus 2a is going to be equal to 11. That is going to be equation number 2 here. Okay, तो अभी देखो हमको कोएफिशिएंट किसके सेम बनाने हैं. देखो फिर से मैं शेयर करता हूं स्क्रीन, चेक करो एक बार हमको निकालना क्या है. Read the last statement. Initial speed of the train is. Okay, what we want is we want to find out the initial speed of the train. That means we want to find out u here. तो u निकालने के लिए क्या करना होगा, a के कोएफिशिएंट सेम बनाने होंगे. अगर a के कोएफिशिएंट सेम बन जाते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा जब हम उसको सबट्रैक्ट करेंगे. और a के कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा. ओके, so let us multiply this equation number 1 by 4, and what we get is 4u plus 4 times of a by 2. Okay, that is equal to 4 times of 8. Yes, that means it becomes actually 4u plus here 2 2s are 4, so it becomes 2a here, and that is going to be equal to 32. Okay, this is our first equation multiplied by 4. Yes, and then just write this second equation below this, that is we can have this 2u plus 2a which is equal to 11, and then we have to subtract these two equations. Okay, तो यहाँ पे अगर subtract करेंगे तो minus minus minus, this 2a will get cancelled, right? And once we get cancelled with this, we can just be left with 4u minus 2u, which is going to be simply 2u, which is actually equal to 32 minus 11. How much it comes out to be? 21. Check, 21, and hence u can be actually obtained to be 21 divided by 2. That means u must be equal to 10.5 meter per second. Yes, so 10.5 meter per second. This much will actually be the value of initial velocity which we have to find it out. अब यहाँ पे चलो initial velocity तो हमको मिल गया. अगर तुमको पूछा रहता what is the acceleration, तो क्या करते बताओ. How will we find out the acceleration? तो उस केस में ये दो इक्वेशंस जो है तो उनको हम u का कोएफिशिएंट सेम बना के लेते थे. तो उसके लिए हमको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था और फिर एक्सेलरेशन मिल जाता था. या अभी भी हमको मिल सकता है अगर हम ये u का वैल्यू जो मिला हुआ है वो किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, या इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू डाल दो तो उसमें से हमको a का वैल्यू मिल जाएगा. आराम से चेक करके देख सकते हैं. ठीक है, so let us just take the screenshot of this. And yes, have the word if you have not understood any step. दो ही स्टेप्स किए हमने यहाँ पे, सिर्फ ए बी इंटरवल के ऊपर काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई किया सेकंड वाला, और उसके बाद ए सी इंटरवल के ऊपर भी वही काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई किया, और उससे हमको दो इक्वेशंस मिल गए जिनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और हमको आंसर मिल गया. ठीक है, yes, let us see the next question. तो इनिशियल स्पीड कितना होगा. अच्छा, ये 10.5 जो है वो हमको कितना मिला, just forget about it, maybe कुछ मिस्टेक होगा उसमें. Let's see the next question. Okay, a body covers 30 meter and 40 meter during
10th and 15th second respectively. Then acceleration and initial velocity of the body are respectively. तो देखो फिर से वही फॉर्मूला हमको यूज करना होगा जो हमने बाद में डिराइव किया था, याद होगा आपको. What is the formula for distance traveled in nth second? याद है? It is u plus 2n minus 1 upon 2 into a. ओके, ये फॉर्मूला हमने देखा था. तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इस बॉडी ने 10th सेकेंड में ये सपोज 10th सेकेंड है, तो यहाँ पे उसने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ओके, और ये दिया हुआ है कि उसने आगे चल के 15th सेकेंड में जो है 15th सेकेंड में 40 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ओके, तो देखो 10th सेकेंड में 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 15th सेकेंड में 40 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन उस बॉडी का कितना है और इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी का कितना है, ये दोनों हमको चाहिए. उसके लिए ऑप्शंस है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट. See here, the distance traveled by the body in nth second is always given by this formula. U is equal to SN delta is equal to u plus 2n minus 1 upon 2 into a. ये हमको ऑलरेडी पता है, हमने प्रूव किया है. डेल्टा s is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. ठीक है, तो अगर ये है फॉर्मूला हमारे पास, तो इसमें डेल्टा s के बदले पहले क्या आएगा, 30 आएगा. तो ये हमने डाल दिया 30, और इस तरफ u हमको पता नहीं, प्लस a पता नहीं, इंटू 2n माइनस 1. n कितना है यहाँ पे 10, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10 माइनस 1, जिससे हमको मिलेगा 30 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 20 माइनस 1 कितना होता है 19. करेक्ट है. सो वी कैन जस्ट से दैट इज u प्लस 19 by 2a is equal to 30. This is going to be equation number 1. Okay, and then we can say delta s. Again we have to use this delta s is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 for the second condition which is given there. तो 15th सेकंड में उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसमें हमको यहाँ पे डेल्टा एस के बदले क्या आने वाला है 40. u पता नहीं, a पता नहीं, और 2 into n is going to be 15 here. So ये 15 minus 1, 2 into 15 minus 1, जिससे हमको मिलता है 40 is equal to u plus a by 2 into what is this 30 minus 1, मतलब वो 39 हो गया, 29 हो गया, right? So it is 29. So you can just write this as u plus 29 by 2 into a is equal to 40. This can be given as equation number 2. And now it is just a matter of solving these two equations simultaneously and get the answer. वो तो हमको already पता है कैसे करना होता है. So if you just put these two equations one below each other, then we can be able to write this as u plus 19 by 2a is equal to 30. This is equation number 1. And as second, u plus 29 by 2 into a is equal to 40. This is equation number 2. And just subtract these two equations. Okay, दोनों equations के अंदर u का coefficient same है, तो अगर हम subtract करेंगे यहाँ पे minus minus minus, so u will get cancelled straight away, and here it will be left with 19 by 2a minus 29 by 2a, and that is equal to 30 minus 40. So that means you can just take this a by 2 common and be left with 90 minus 29 into a by 2 is equal to minus 10. So that we get this minus 10 into a by 2 is equal to minus 10. So that minus minus cancel, 10 cancel, and we are left with a by 2 is equal to 1. So that a becomes equal to 2. Okay. Once we get this value of a, we can immediately put it
in any one of these equations, so as to get the value of u. So we can just put this value in equation number 1 and get it as u plus 19 by 2 into a. A मतलब क्या है 2, which is going to be 30. So that we can just solve this as, and 2 will get cancelled and we'll be left with u plus 19 is equal to 30, which gives u is equal to 30 minus 19. That means u must be 11. Check. Okay, so u is going to be 11 meter per second square and a is going to be 2 meter per second square. Sorry, meter per second. Okay, so these are the answers. Let's check. Okay, so 2 meter per second square and 11 meter per second. Yes, so 2 will be actually the correct. नहीं उल्टा, initial velocity पहले पूछा नहीं, acceleration पहले पूछा है, तो acceleration 2 है, तो 2 and 11, right? 2 second will be the correct option. Okay. Yes, just take the screenshot of this. ओके ठीक है, सो काइनेमेटिक्स के ऊपर हमने बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी किए, तो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रेविटेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो मंडे वाले लेक्चर में हम ग्रेविटेशन का थोड़ा बेसिक देखेंगे और एमसीक्यूज भी उसके ऊपर के सॉल्व करेंगे. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द ग्रेविटेशन. ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू. लेट अस स्टॉप हियर.